आज दिन के 10 बजे वार्ड नंबर 141 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जानिब से 125वीं नेताजी के बर्थडे के मौके पर फूल माला अर्पण किया गया हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के हाथों से। इस वक्त मौजूद रहे वार्ड नंबर 141 के प्रेसिडेंट मोहम्मद खुर्शीद, सोशल एक्टिविस्ट शेख गुलाम मुस्तफ़ा, राजा भाई, शमशेर आलम माइनॉरिटी सेल वाइस प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 141। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। আরেকটা মাইক কোথায় গেল? চলো চলো বলো বলো বলো। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और 125वां आज जो है जन्मदिन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो कि मुजाहिद आज़ादी रह चुके हैं। और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला है, जिन्होंने अभी फ्लैग होस्टिंग किया। हमारे बीच वार्ड नंबर 141 के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद खुर्शीद रिजवी साहब हैं, शेख गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। आइए इनसे बात करेंगे। सर, आज के जे 125 বার্থ সেলিব্রেশন হচ্ছে, স্যার কি কথা বলতে চাইবেন এই শুভ অবসরে? এই শুভ উপলক্ষে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের 125তম জন্মবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায়। আজকের দিনে এই কথাই বলতে হয় যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে আদর্শ তিনি হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনি একটা স্লোগান দিয়েছিলেন, গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ লিবার্টি। আজকে সেইটাই আজকের আমাদের সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে আদর্শকে আমাদের স্মরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি যেটা কেন্দ্রে রয়েছে, যারা এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টানের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং এখানকার যে ধর্মনিরপেক্ষ যে কাঠামো, সেই কাঠামোকে তারা নষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের বিরোধী তারা কাজ করছে। তাই আজকের দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জয়ন্তী উপলক্ষে আমাদেরকে শপথ নিতে হবে, আমরা এই সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। স্যার, একটা প্রশ্ন আছে যে দেখা গেছে আমার জওয়ান জ্যোতি 1972 ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে আছে, ওকে বিজেপি কি করেছে, ন্যাশনাল ওয়ারতে সম্মিলিত করে দিয়েছে, জয়েন করে দিয়েছে। কি বলবেন, এটা মানে কীরকমভাবে আপনি দেখছেন? এটা নতুন কথা কিছু নয়। বিজেপি যখন থেকে ক্ষমতায় এসছে, ছোটো জিনিস আছে, সমস্ত জিনিসের তারা নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। যেমন এই কমিশনের নাম তারা চেঞ্জ করে দিয়ে তারা নীতি আয়োগ করে দিয়েছে। মোগলসরাইয়ের মানে স্টেশনের নামকে চেঞ্জ করে দিয়ে বিজয় উপাধ্যায়ের নাম করে দিয়েছে। তাজমহলের নামকে তারা চেঞ্জ করে দিচ্ছে। সমস্ত জিনিসের নামগুলো তারা পরিবর্তন করে তারা একটা হিন্দুত্ব একটা যে বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে। আচ্ছা, একটা কথা আছে স্যার আপনার সঙ্গে প্রশ্ন, যে আমার জওয়ান জ্যোতিকে তো এরা করে দিল, এটা ইতিহাসকে মিটাবার চেষ্টা করেছে। সেই জায়গা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মানে ইন্ডিয়া গেটের কাছে সেই ওনার একটা মানে যে হলোগ্রাম লাগাচ্ছেন, ওখানে মজস্সমাটা লাগাচ্ছেন, সেই প্রশ্নে কি বলবেন আপনি? দেখুন, এদের একই কথা, এদের নতুন করে করার কিছু নেই।
পুরাতন যেগুলো আছে সেইগুলোকে নাম পরিবর্তন করে এ করছে, ইন্ডিয়া গেটের তার নিজের ছবি দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা পুরোপুরি মানে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ, এটা সাম্প্রদায়িক কাজ, এগুলো হওয়া উচিত নয়, এগুলোকে বর্জন করতে হবে। স্যার, এই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যত মানে শহীদ হয়েছেন আমাদের লিডার্স মহাপুরুষরা মানে মুজাহিদ আজাদিরা, ওদের একটা টেবল যেত ওখানে 26 জানুয়ারির শমূলিয়ত হতো, কিন্তু মানে বিজেপি গভর্নমেন্ট ওকে সামিল করছে না, সেই জন্য মমতা ব্যানার্জি ওনাকে মানে লেটার লিখেছে আর ওরা মানছে না। কি বলবেন? দেখুন, নতুন করা কিছু নয়, আজকের তারা একনায়কতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা করছে। যা কিছু হবে সব বিজেপির মাধ্যমে হবে, বিজেপি করবে, অন্য কোনো দল অন্য কোনো রাজ্য সেখানে করবে না। সেই হিসেবে তারা আজকের আমাদের যে নেতাজির স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে ট্যাবলেট পশ্চিমবাংলার যাওয়ার কথা ছিল সেটাকে তারা বন্ধ করে দিয়েছে, এবং মমতা ব্যানার্জি তার জন্য চিঠিও লিখেছে, কিন্তু কোনো শুনানি হয়নি এবং তারা এই কাজ করে যাচ্ছে। खुर्शीद साहब, आप 141 के प्रेसिडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे अमर जवान ज्योति जो 1972 में कायम किया गया और उसकी सम्मा को बुझा देने की कोशिश? ये बहुत ही अफसोस की बात है, और मोदी हुकूमत का ये जो उसका जो काम है, जो देश के विद्रोह में और तारीख़ी जितना सब कुछ मिटाने का जो उसका जो चलन है, वो आज अमर ज्योति को बुझा करके वो ये साबित कर दिया कि हम जो 7 साल में कर रहे हैं वही ठीक है, जो 70 साल से हो रहा वो ठीक नहीं है। ये दोगलापन है उसका। वो दिखाता है कि देखो, हम नेताजी का मूर्ति को, स्टैचू को हम इंडिया गेट में लगाया, लेकिन उसके अंदर में कितना पाप है वो आदमी समझ रहा है। हमारे यहाँ नेताजी डॉग था, उसका नाम को बदल करके श्यामा प्रसाद डॉग किया, तो जो उसके ऊपर में है, ज़बान पर है, वो दिल में नहीं है। दिल का बात अलग है उसका और ज़बान का बात अलग है। ये है दोगलापंथी। और आज हम लोग इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं कि नेताजी ने जिस आदेश के साथ नेताजी फौज बनाया और जिस तरह से अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके जिस तरह से लड़ाई लड़ा, आज उसका उल्टा आज ये नरेंद्र मोदी हुकूमत और आरएसएस का जो प्रचालक है ये कर रहा है। इससे हम लोग को लड़ना है, और आने वाला कल हम लोग इसको ख़त्म करके, इसका बुनियाद को ख़त्म करके, आरएसएस का बुनियाद ख़त्म करके मोदी को, नरेंद्र मोदी को 24 में दिल्ली के गद्दी से हटा करके अपने ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करके हम लोग को आगे बढ़ना है। यही हमारा प्रतिज्ञा है। यह हमारे एमएलए साहब का, हमारे एमपी साहब का, हम तमाम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी अधिकारी का यह है कि हम लोग किस तरह से आगे 2024 के लिए आगे बढ़े। अभी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला है मेरे पास, और वार्ड 141 के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 141 के जनाब शमशेर साहब, जो कि ममता बनर्जी के ऐसे सिपाही हैं जो कि 24 घंटा 24/7 काम करते हैं। हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के साथ मिलकर के काम करते हैं, खुर्शीद रिजवी के साथ मिलकर के काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे शमशेर साहब, आज 150वें जन्मदिन? आज देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 150वां जन्मदिन पर 125वां जन्मदिन है। हम तमाम लोग हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब की क़यादत में, खुर्शीद भाई राजा साहब की रहनुमाई में हम लोग नेताजी पार्क में, ये नेताजी पार्क है जिसको हमारे एमएलए साहब ने बनवाया है, इसमें हम लोग आज जश्न मना रहे हैं। और आरएसएस के पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो योम आज़ादी में शामिल था। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि एक स्टैचू बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को बेचने का काम कर रहा है, उसके पास आरएसएस का पास एक भी नेता नहीं है। अब अमर ज्योति जवान जो बुझा रहा है, तो उसको बचाने के लिए वो नेताजी को सामने खड़ा कर दिया है कि नेताजी का हम नाम का इस्तेमाल करके, एक तरफ मतलब पब्लिक का इमोशनल अटैचमेंट करके कि देखिए नेताजी आज़ादी में बहुत आदमी था, लेकिन अपने आप को अमर ज्योति जवान को मिटाने के लिए वो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहाँ पे किया। और आप लोग देख रहे हैं कि जब से 7 साल से ये टोटल माइनॉरिटी का खिलाफ है। यहाँ तक कि बंगाल में एक भी उसका मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। यूपी में जो इलेक्शन होने जा रहा है 403 सीट में एक भी मुसलमान उसका कैंडिडेट नहीं है। तो वो जो बोलता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसका स्लोगन ही गलत है।
उसका स्लोगन ही जो है वही गलत है। जब सबका साथ सबका विकास सबका ही होता तो दलित को भी मिलना चाहिए था, माइनॉरिटी को भी सीट मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्ट ही दे दिया कि हम 20% जो माइनॉरिटी है हम उसको लेकर के नहीं चलेंगे, हम 80% जो है हम उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन अब देखिएगा जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा वो 5 राज्यों में वो बुरी तरीक़े से हारेगा और फ्लॉप होगा। और ममता बनर्जी आने वाला 2024 में पश्चिम बंगाल से 42 में 42 सीट जीतने के बावजूद त्रिपुरा में भी हम लोग जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे, यूपी में, हिंदुस्तान का हर रियासत में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी वो काम कर रहे हैं ममता बनर्जी के आदेश में। और इंशाअल्लाह रहमान 2024 में तमाम पार्टियां मुत्तहद होके सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही हिंदुस्तान का पीएम बनाएगा। गुलाम मुस्तफा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, আমরা কি বলবো, বাংলা জনতা তো মানে রায় দিয়েছে, এরপরে আছে ইউপি জনতা। ইউপি জনতা বুঝে গেছে এ একটা ঢগসলা, ঠিক আছে। মানুষকে কী বলতো উল্টো হয়ে যাচ্ছে, উন্নতি নেই, শিক্ষা নেই, মানে ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই, কিচ্ছু নেই, খালি ধর্মের নামে সুশ্রী। মানুষ ধর্মের নিয়ে কতদিন করবে? 1 বছর 2 বছর, আজ 11 বছর হয়ে গেল। তো আমার মনে হয় এই তথাগত রায় ওদের মানে যে রাজ্যপাল উনি একটা মানে টুইট করেছে যে ভারতবর্ষ থেকে বিজেপি মুছে যাচ্ছে। তো আমরা আগামী দিনে আমাদের বাংলার যে নেত্রী, সারা ভারতবর্ষের বিরোধী দলনেত্রী হিসাবে যে মুখটা যেটা আছে প্রধানমন্ত্রীর, আমার মনে হয় সারা ভারতবর্ষের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মমতা ব্যানার্জিকেই চুজ করবে। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने एमपीज़ को ही समझाता हूँ, आप मेरी बात, आप 2 लाइन बोलिए कि नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के बस 125वां जन्मदिन के ऊपर मेरी शुभकामनाएं और लोग अमन और शांति के साथ इनके बताए हुए रास्ते पे चले। 2 लाइन बोलना, नेताजी के रास्ते पे বাংলা। এখন আমার সঙ্গে দ্য লোকাল জার্নালিস্ট টিমের সঙ্গে জুড়ে গেছেন জনাব শেখ গুলাম মুস্তফা সাহেব, এনি ইমিনেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার, এনি মমতা ব্যানার্জি সোলজার, এনি 24/7 কাজের লোক সঙ্গে, ওয়ার্ডের লোক সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ওনার যে দরকার আছে, জরুরত আছে, পরেশানি আছে, সে সময় সব সময় থাকেন। আসুন ওনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা করব। স্যার, আপনি আজকে কেমন লাগছে আপনাকে, আর কি আপনি কি মেসেজ দিতে চান? আমাদের যে 125তম নেতাজির জন্মদিন, তার জন্য আমরা খুব ভালোই করছি। আর আমরা চাই যে সব এনার দেখাবার রাস্তায় আমরা এনার চলি, হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সব একসাথেই চলি। আর বিজেপি যে আমাদের যে হিন্দু মুসলমান ভাগ করছে সেইভাবে আমাদের নাই হয়। আমাদের নেত্রী আছে মমতা ব্যানার্জি, উনিও সেই রাস্তায় চলছে, নেতাজির রাস্তায়, সেই রাস্তায় আমরা চলতে চাই সবাই। সেইভাবে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে আগে বাড়াতে চাই। আমরা কামিয়াবি হাসিল করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর রাস্তায় আমরা দেখতে চাই। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वार्ड नंबर 141 से हमारे बीच मौजूद हैं हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, मोहम्मद कुरसद रिजवी, शेख गुलाम मुस्तफ़ा, शमशेर और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, बॉबीदा भी मौजूद है। इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, आज जो एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क को, पूरे बंगाल को ये पैगाम जाए, जो लोग नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चले और देश में अमन सुकून बरकरार रहे। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।